So breathing and exchange of gases. This is our new chapter which we are starting today. अभी every organism depends on oxygen, ठीक है, for his lifespan, ठीक है. Some organism they depend, some don't depend also, but every organism it requires to what we say, it requires some percentage of air which has to be which should enter within its body, ठीक है, and that air which help, it will help for oxidation. उसमें से ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन के लिए वर्क करेगा. तो यहाँ पर दो टर्म्स हमें दिख रही है, एक है रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक है ब्रीदिंग. सो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप में से कई लोगों को पता है, ठीक है. सो हु विल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, एनीबॉडी बोलो. Sir, breathing is normally the inhalation and the exhalation of the gases through lungs and nose, but respiration is the catabolic process which gives in form of which results in the form of energy. Yes, very good. So breathing is actually the inhalation and exhalation what we talk about, ठीक है. हम बोलते हैं inhale, ठीक है, to inhale the air or to exhale. तो inhale करना air अंदर लेना और exhale यानी बाहर छोड़ना. तो ये जो प्रोसेस होता है जो हम करते हैं with the help of lungs, that is called as breathing. उसको हम बोलते हैं breathing, ठीक है. अभी ये breathing तो है, लेकिन ये breathing करते क्यों है हम? So the oxygen which enters within our body that helps in oxidation of nutrients, ठीक है, in the living cells to release energy for biological work. So as who told? Harsh told, correct? Answer? Yes, sir. Yes, Yes. Harsh. Harsh Gunjal, as he said, so it is a catabolic process, ठीक है. In that breakdown is occurring. So catabolic होता है, anabolic होता है, ठीक है. तो catabolic यानी क्या, breakdown हो रहा है. तो breakdown हो रहा है substances का. तो हम जो food लेते हैं inside, ठीक है, the glucose suppose which comes from the food that is digested within our body, ये ग्लूकोज क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है. तो वो ब्रेकडाउन के लिए क्या लगता है, तो इसके ब्रेकडाउन के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. तो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन आता है और फूड से जो ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन विल व्हाट इट विल डू, इट विल ब्रेक द ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है. सो ब्रीदिंग इज जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide rich air, taking in oxygen rich air and giving out carbon dioxide rich air, that is called as breathing. But जब हम बोलेंगे respiration, तो respiration is this process in which oxidation of the nutrient का क्या होता है, oxidation होता है nutrient का in the living cells to release energy, release of energy occurs. और ये energy की वजह से हम लोग work कर सकते हैं, we can do certain activities within our life. So breathing is the exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell. So oxygen लिया जाएगा और carbon dioxide breathing से क्या किया जाएगा, बाहर दिया जाएगा. So this is the difference between respiration and breathing. This should be very clear. That's why this chapter is also called as respiration भी बोलते हैं chapter को. Now respiratory organs. Now this topic is related to the chapter, our previous chapter, that was animal kingdom, ठीक है. animal kingdom से related है. So respiratory organs कौन से हमारे body पे. So every organism had different kinds of respiratory organs. Some organisms they have general body surface, they respire through general body surface. Like for example मैं बोलूँ अगर एक अमीबा है, ठीक है, एक सिंगल अमीबा है, अब इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या लगेगा, है ना, एक सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर कहते हैं, ठीक है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, व्हाट रेस्पिरेटरी ऑर्गन विल इट हैव, करेक्ट. सो इट डजंट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. व्हाट इट डज इज, जो सराउंडिंग में वाटर है वो वाटर से क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया अंदर ऑक्सीजन का यूज करके फूड को ब्रेक डाउन कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, रिलीज कर दिया, हो गया.
तो ये ऐसा सिंपल प्रोसेस है अमीबा के बॉडी में, क्योंकि अमीबा क्या है, इट इज यूनिसेल्युलर, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अभी कुछ ऑर्गेनिज्म जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं, जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, दिस ऑल वी हैव सीन इन एनिमल किंगडम, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स एनिमल किंगडम चैप्टर को नहीं थे, उनका एनिमल किंगडम चैप्टर बाद में वापस लिया जाएगा, लेकिन आपका पहले 9th में हुआ है ये टॉपिक, आपको पता है कि देयर आर वेरियस फाइलम्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेटा, एंड फ्लैटवर्म इज प्लैटीहेलमिन्थस। ओके, सो जनरल बॉडी सरफेस से ये सब लोग क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स दे रेस्पायर, some organisms they respire through skin or moist cuticle. so उनका जो बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस के ऊपर, ये ऑर्गेनिज्म का सपोज ये बॉडी है, तो बॉडी सरफेस पे क्या होता है, देयर इज अ क्यूटिकल विच इज फॉर्म, ठीक है, बॉडी के ऊपर ऐसा क्यूटिकल होता है। ये क्यूटिकल जो है, इस या जो स्किन बोल सकते हैं हम लोग, मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन, इसके थ्रू डायरेक्टली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट स्किन के थ्रू। तो ये किस किस में होता है, तो ये अर्थवर्म, लीच, एम्फीबियंस, ठीक है, हमने देखा था फ्रॉग में होता है, तो इनमें सब में थ्रू स्किन होता है। ओके, ना ट्रकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। ट्रकियल ट्यूब क्या होता है, सो जब हम देखते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये है एक कॉकरोच, निकालता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, दिस इज अ कॉकरोच, ठीक है, ये कॉकरोच का हेड है और ये बॉडी है उसके। अभी कॉकरोच के बॉडी में आप अगर देखेंगे तो कॉकरोच के बॉडी में एक साइड से दूसरे साइड ऐसे पूरे क्या है, ट्रकिया है, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो ये ट्रकिया है, ये ट्रकियल ट्यूब है। थ्रू दिस ट्रकियल ट्यूब व्हाट हैपेंस इज एयर फ्रॉम आउटसाइड गोज इनसाइड, और एक अंदर जाके क्या होता है, अंदर सेल्स उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और बाहर क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ट्रकियल ट्यूब्स होती है। और स्टार्ट इन ट्रकियल ट्यूब्स का कहाँ होता है, सो देयर आर पोर्स in their body. Who can tell me the names of those pores, what we call them? Anybody? Pores on the body surface through which air enters inside. Nobody knows. Okay. What is the question? What are the pores? What are the pores called through which air enters inside? यहाँ जो pores है ना, ये pore है, suppose इधर एक pore है, उधर pore है. Spiracle. Yes. Spiracle. Yes, very good. Who gave answer? Abhishek. Yes. Okay, very good. Yes, these are called as spiracles और spiracles भी बोलते हैं उनको, spiracles, ठीक है। ये spiracles, इनके थ्रू एयर अंदर जाता है और बाहर आता है, और अंदर क्या है, ऐसे ट्यूब्स है, तो इसको बोलते हैं ट्रकियल ट्यूब सिस्टम। ये किस में दिखता है, सो वी सी दिस इन इंसेक्ट्स, सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, ये सब कौन से फाइलम में आते हैं, तो दे कम इन ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा में ये सब आ जाते हैं, तो ये सब में ट्रकियल ट्यूब्स होते हैं ना। और कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होता है, तो गिल्स होता है, ठीक है, गिल्स रेस्पिरेशन, और इसको ब्रैकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ये गिल्स रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ये होते हैं एक्वेटिक, these are aquatic organism, that's why they require gill। तो ये कौन से, फिशेस, टैडपोल्स, प्रॉन, खेकड़ा बोलेंगे हम, ये सब लोगों में क्या रहता है, वी फाइंड गिल्स। तो गिल्स का कैसा होता है, वाटर एंटर्स विद इन आवर बॉडी, और गिल्स से क्या होता है, बाहर जाता है फिश के बॉडी से। जैसे अगर हम देखते हैं फिश है, ठीक है, ये फिश है, तो फिश के बॉडी से यहाँ से वाटर अंदर जाएगा, और यहाँ जो गिल्स है, यहाँ से वाटर बाहर आएगा, और बीच में गिल्स क्या करते हैं, अंदर उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो दिस हैपेंस, सो दैट इज फंक्शन ऑफ गिल्स। लेकिन हो क्या रहा है सब में, ठीक है। और ये लंग्स तो हमको पता है, वी नो अबाउट लंग्स, वी नो दैट लंग्स एक्चुअली हैव पल्मोनरी रेस्पिरेशन, या फिर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन बॉडी में से एंटर होगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस। सो लंग्स है, तो लंग्स तो हमारे अंदर है, तो हमें पता है, ठीक है, लंग्स क्या है। अभी लंग्स के बारे में डिटेल में भी हम देखने वाले आगे जाके।
तो ये जो सारी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं इधर, दिस ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, एंड दिस आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन विच दे आर फाउंड। ये सब का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों? तो वहाँ क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। और उसके ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा? एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो दिस इज वेरी सिंपल फंडा, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बट ये याद रखना है सारे ऑर्गन्स, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस में। क्योंकि ये जो टॉपिक है, दिस इज टॉपिक कंबाइंड स्लाइड ऑफ एनिमल किंगडम एज वेल एज दिस चैप्टर, दोनों का मिला के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक पे से आ सकते हैं। ओके, so let us move to the next slide. Now human respiratory system, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, हम उस पर जाएंगे। अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं इस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग देखेंगे क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये क्या है? दिस आर द हेयर्स, लेकिन इसका कुछ लेना देना नहीं है, दिस इज बॉडी ऑफ द ह्यूमन। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी बोलते हैं इसको, नेजल कैविटी, ठीक है। तो ये नेजल कैविटी को दूसरा नाम है नेयर्स। क्या है? नेयर्स, नेजल कैविटी। तो ये दो है दोनों साइड में, ठीक है, नेयर्स। उसके थ्रू क्या होता है? एयर अंदर गई, ठीक है। और ये नॉस्ट्रल बोलते हैं यहाँ जो, जिसके थ्रू नाकाचा जा होल्स है उसके थ्रू, उसको नॉस्ट्रल बोलेंगे। तो थ्रू इट हैज एंटर इनसाइड। ओके, नाउ इनसाइड द एयर विल गो लाइक दिस, इट विल गो डाउन इन, इट विल कम इनटू फेरिंग्स रीजन, ठीक है। कौन से रीजन में आ जाता है? तो फेरिंग्स रीजन में आ जाता है वो एयर। आप बोलेंगे सर फेरिंग्स में तो आ गया, लेकिन फेरिंग्स के पहले क्या होता है? कुछ होता है क्या उसमें? तो यस, सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो होती है, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है जो हो रही है? तो जो एयर है, एक्चुअली एयर कैरीज मेनी थिंग्स विद इट। जो एयर हमारे बॉडी में एंटर कर रही है ना, इट कैरीज मेनी थिंग्स। कैन यू टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स मस्ट बी देयर इन दैट एयर? बोलेंगे कोई? बताएगा? Dust particles. यस, डस्ट है उसमें, करेक्ट। और मेन तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ये सारे गैसेस है ना, ये भी है। और वाटर वेपर्स भी है, ठीक है, वाटर वेपर्स भी है उसमें। ये सब चीजें क्या हो रहे हैं? एंटर कर रहे हैं आंसर अंदर। एंड दैट्स व्हाई वी हैव हेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हेयर्स है, और इवन इस पार्ट में भी क्या है? यहाँ पे सीलिया है, ठीक है। ये पार्ट में भी हेयर्स और सीलिया क्या करते हैं? उसका जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो सबको क्या करते हैं? हटा देते हैं, ठीक है। और प्योर एयर को अंदर अंदर भेजते हैं। एट द सेम टाइम दिस पार्ट एक्चुअली मेक्स द एयर ह्यूमिड, और एयर का टेम्परेचर मैनेज करते हैं, so that cold air should not enter inside the lungs। lungs में cold air नहीं जाना चाहिए, इसीलिए एयर को क्या होता है? यहाँ से जाते जाते वो क्या होती है? एयर उसको ह्यूमिड होती जाती है, उसमें वाटर का क्वांटिटी ऐड होता है। एट द सेम टाइम उसका टेम्परेचर क्या होता है? मैनेज किया जाता है। ठंडी है तो गर्म होगी थोड़ी, और गर्म है तो वो ठंडी होगी, ऐसा करके एयर अंदर डाली जाती है, so that it should manage। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना ह्यूमन बॉडी का? 36 डिग्री सेल्सियस। जैसे 37 होता है। तो इतना नॉर्मल मेंटेन करने का बॉडी ट्राई करते हैं, तो एयर का टेम्परेचर वैसा किया जाता है, ठीक है, एडजस्ट किया जाता है। इसीलिए हम, हमारी एयर कभी भी हमें क्या लगती है? गर्म लगती है। क्यों गर्म लगती है? क्योंकि माउथ से जो एयर आती है वो गर्म लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम रहता है नॉर्मली, या तो फिर हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कम टेम्परेचर, लेकिन बॉडी के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो एयर हमें गर्म लगते है थोड़ी सी। तो एयर क्या किया जाता है? एयर को, उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसका नॉर्मल किया जाता है, जिस विच कैन एंटर इनटू द लंग्स, विच इज अलाउड टू एंटर इनटू द लंग्स। देन ये जो है, यहाँ पे तीन ये रहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ऑसिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स में, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे समझ लीजिए ऑसिकल्स है, या कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स है जो क्या कर रहे हैं? एयर को अंदर पास करने में हेल्प करते हैं। उसका एयर का क्या बढ़ाते हैं? तो उसका एयर का स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज वो करते हैं, दैट इज द फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज
एयर जब अंदर जाती है इस पार्ट में, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ये जो रीजन है यहाँ से, ये रीजन, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स को अपने भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट एज थ्रोट। ठीक है, घसा, ठीक है, घसा बोलेंगे हम लोग। तो दिस इन थ्रोट पार्ट द एयर इज कमिंग। सो ना एयर के पैसेज दो है, एक तो माउथ में से भी आ सकती है ऐसे, ठीक है, और दूसरा यहाँ से भी आ सकती है ऐसे। तो दो पैसेज है। नाउ इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, ठीक है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से एयर आने के लिए जगह है और यहाँ से भी, और ये दोनों यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो नोज से इधर आ रही है और यहाँ से यहाँ आ रही है। माउथ से आने में प्रॉब्लम क्या है, माउथ से आएगी तो ऐसे फिल्टर नहीं होगी जो नोज से फिल्टर होके आते हैं। इसीलिए वी शुड ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आवर नोज मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी why we should breathe from our nose? Sir, the nostrils and the nasal cavity consist of cilia, which filter out the other material other than the gases. Correct. And filter the air which is inhaled by us, which are not present in mouth. Correct. So we should breathe through nose. Yes, very good. So similarly, if we take directly through mouth, then it will directly enter inside. So that's why better is to breathe by nose. But आप बोलेंगे सर माउथ क्यों दिया है लॉर्ड ने, भगवान ने माउथ क्यों दिया, माउथ से क्यों नहीं करना? Yes, with mouth also you can do. You can exhale with mouth. That is very good to exhale with mouth. But pranayam or yoga, if you say, they actually focus. They tell that we should understand our breathing, and nostril breathing भी होता है, mouth breathing भी होता है, दोनों से होता है. So both is there told. नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है वो नोज से चलता रहता है, ओके। नाउ लेट अस मूव अहेड। सो इट फेरिंग्स तक हम लोग आ गए, ठीक है। अभी फेरिंग्स से हम लोग जाएंगे, अंदर जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ गया लैरिंग्स वाला पार्ट, ठीक है। इन मेल्स इट इज क्लियरली विजिबल, इट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल, ठीक है। लैरिंग्स मेल्स में वो बहुत क्लियरली विजिबल है, फीमेल्स में क्लियरली विजिबल नहीं, अंदर होता है, ठीक है। मेल में क्या होता है, इट इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट विजिबिलिटी, ठीक है। उसका विजिबिलिटी होता तो दोनों में है, लेकिन विजिबिलिटी प्रोमिनेंट है मेल में। तो नॉर्मली व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू इट्स टीनेज, टीनेज में आता है 12-13 ईयर्स के बाद में, तो उसका फिर बढ़ना चालू होता है वो, और जब उसमें मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं सारे, देन इट इज क्वाइट विजिबल, ठीक है। उसका वॉइस भी चेंज होता है, आवाज भी चेंज होता है थोड़ा। सो दिस इज प्रोमिनेंटली विजिबल। अभी लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स के अंदर जो एयर यहाँ से वापस जा रही है, ठीक है। तो लैरिंग्स के अंदर क्या होता है, वॉइस, वॉइस बनने के लिए वॉइस वहां से प्रोड्यूस होता है। तो वहां पे क्या होता है, देयर आर वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स है लैरिंग्स में, जो कि वाइब्रेट करते हैं, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज आ रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, एयर जो मेरे लंग्स से आ रही है लैरिंग्स के थ्रू माउथ में, मेरे लैरिंग्स में क्या हो रहा है, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स है, और वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रही है, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू मेक नॉइस, ठीक है। साउंड, नॉइस या साउंड, आपके लिए नॉइस होगा। some can call it noise, some can call it sound, it depends on the person. नॉइस यानी क्या है, you don't want to hear it like that, it is called noise. तो वो नॉइस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए साउंड भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए व्हाट इज से, नहीं नेक्टर नहीं बोलूंगा, बट सम पीपल मे लाइक इट आल्सो। सो इट डिपेंड्स। somebody singing now, so he is using larynx, गला ठीक करना है बोलते हैं ना हम लोग सिंगिंग के लिए, तो दैट इज एक्चुअली larynx को ये करना है। अभी हमने एक देखा था कि बर्ड्स में होता है, larynx को क्या बोलते हैं, साइरिंक्स, साइरिंक्स बोलते हैं, एन है यहाँ, SYRINX, साइरिंक्स। इसकी वजह से बर्ड्स कैन सिंग, ठीक है। वी हैव larynx एंड बर्ड्स हैव साइरिंक्स, रिमेंबर दिस, ओके। नाउ larynx से आगे जाते हैं हम लोग ट्रकिया में। दिस इज ट्रकिया। ट्रकिया में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, देयर आर रिंग्स, ये रिंग्स है यहाँ पर, ठीक है। दीज रिंग्स, दीज आर कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या है, तो दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड दीज आर सी शेप्ड। कैसा शेप है इनका, सी शेप्ड रिंग्स। अभी some people may ask, sir what is the use of this ring, इस रिंग का यूज क्या है।
तो 1 मिनट आपको बताता हूँ। ओके, तो ये कार्टिलेजिनस रिंग क्या करती है? समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द ट्रकिया, ये जो ट्रकिया है, ट्रकिया क्या होता है, इट कैन कोलैप्स, क्योंकि यहाँ लंग्स इतने बड़े हैं, ठीक है, ये लंग्स है, लंग्स में एयर भरता है या कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है वहां पे प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो प्रेशर की वजह से समटाइम्स इट कैन हैपन दैट ट्रकिया कैन कोलैप्स, ठीक है। सो अवॉइडिंग दैट कोलैप्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो देन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो ट्रकिया को क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं, ठीक है। एंड दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स यानी उसको ये नहीं कोलैप्स नहीं होने देते, और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स सी शेप्ड के है, याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है, और सी शेप्ड के यानी सामने से पैक है, पीछे से थोड़ा सा खुला है, ऐसा सी शेप्ड है, ये पूरे राउंड नहीं है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो सी शेप्ड रिंग्स है। अभी सी शेप्ड रिंग्स आ गया, ट्रकिया हो गया, ट्रकिया का यहाँ वाला जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड कैरिना ऑफ ट्रकिया, क्या बोला जाता है उसको, कैरिना ऑफ ट्रकिया। नाउ व्हाट इज कैरिना, इट इज द प्लेस वेयर trachea divides into bronchi, ट्रकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई से, तो ये ट्रकिया है, जहां से वो ब्रोंकाई से डिवाइड हो गया वो पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट, दिस, सॉरी, ये पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कैरिना ऑफ ट्रकिया। ओके, जहां से वो डिवाइड हो गया, फिर वहां से वो डिवाइड हो गया काय में, दो ब्रोंकाई में, ठीक है, दो ब्रोंकाई में वो डिवाइड हो गया। अभी लंग्स चालू हो गए इधर से, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं, हु कैन टेल, Bronchioles. Bronchioles. यस, वेरी गुड, इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स फिर आगे जाके क्या फॉर्म होता है, ब्रोंक्यूल्स के आगे जाके वी फाइंड alveoli. यस, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई फॉर्म होता है। एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई में जब एयर आती है तो वो क्या हो जाता है, एल्वियोलाई इन्फ्लेट हो जाता है, जैसे बलून फूक जाता है वैसे फूक जाता है, और एल्वियोलाई इज थिन, ऐसा थिन स्किन से बना होता है, ठीक है, एल्वियोलाई एकदम थिन, सिंगल से यानी एक सेल लेयर्ड है, सिंगल सेल लेयर्ड ऑफ इपिथेलियल सेल्स, ठीक है, तो वैसा लेयर रहता है। तो अल्वियोलाई के थ्रू क्या हो जाता है, ऑक्सीजन आता है अल्वियोलाई में और अंदर ब्लड में, अल्वियोलाई के थ्रू क्या हो जाता है, ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज, ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड में चला जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। अभी ब्लड में चला गया, वो ब्लड से आगे बॉडी में चला गया, बॉडी में यूज हो गया ऑक्सीजन, और फिर बॉडी ने क्या फॉर्म कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दिया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से, फिर यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और बाहर निकलेगा। तो लाइक दिस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है अल्वियोला में, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है लंग्स का, इन दिस यू कैन सी, इधर वाला साइड है इसको बोलते हैं राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकस, इधर वाला साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, राइट वाला साइड और लेफ्ट वाला साइड दोनों में दो ब्रोंका है, ये ब्रोंकाई और ये सॉरी ब्रोंकस और ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी और ब्रोंकस जो भी बोलेंगे हम लोग, और आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में, ये आगे जाके कैसे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ओके, सो लाइक दिस स्ट्रक्चर इज देयर। देन ये हो गया राइट लंग और ये हो गया लेफ्ट लंग। राइट लंग में हम देख सकते हैं 3 लोब्स है, 1 2 और 3। तो राइट लोब क्या है, बड़ा है, इट इज बिगर देन द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में कितने लोब्स है, 2 लोब्स है। तो ऐसा क्यों, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हार्ट। ये जो जगह है, दिस प्लेस इज फॉर हार्ट, ये क्या है हमारा हार्ट।
ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस हार्ट वी फाइंड अ नॉच, ऐसा हमें क्या मिलता है, एक नॉच मिलता है। नहीं तो आप देखिए यहाँ पर नहीं है वैसा नॉच, लेकिन इधर ऐसा लेफ्ट लंग में ऐसा नॉच मिलता है। ये क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हार्ट। ओके, एंड देन इसमें कितना है, 1 2 3 चैम्बर्स है, इसमें 1 और 2। ओके, नाउ लेफ्ट लंग हो गया, राइट लंग हो गया, अभी डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेस्पिरेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द व्हाट इज से क्वेश्चंस, ठीक है, ये चैप्टर में आते हैं, तो इस चीज से रिलेटेड है, तो उसमें डायफ्राम के बारे में आ सकता है, तो डायफ्राम पे क्वेश्चन आते हैं। तो डायफ्राम वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इजी भी है, लेकिन भूल जाते बार बार उसको। तो डायफ्राम का फंक्शन बता देता हूँ, फिर हम डिटेल देखेंगे उसमें आगे। डायफ्राम क्या करता है, तो डायफ्राम एक्चुअली एयर को अंदर बाहर करने के लिए हेल्प करता है। तो डायफ्राम एक्चुअली उसका फ्लैट होता है या फिर वो कर्व होता है। फ्लैट होता है तो क्या होता है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ा देता है, ठीक है, और अगर कर्व होता है तो अंदर का वॉल्यूम क्या करेगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से जो अंदर का एयर है उस लंग्स में, उसका मेंटेनेंस होता है, वो बाहर और अंदर जो घूम रहा है, वो डायफ्राम प्लेज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल इन दैट बॉडी। एग्जाम्पल आपको दूंगा तो मैं रिक्शे वाले का भोपू का एग्जाम्पल देता हूँ मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को। रिक्शे वाले के पास आप गए, आपने देखा ऐसा एक भोपू रहता है, कई रिक्शे वालों के पास है ऐसा, जब वो बैठा रहता है उसके बाजू में ऐसा है, इस पे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, वो सब अलग बात है, लेकिन इस तरह का एक भोपू स्टूडेंट सॉरी रिक्शे वाले के पास में हमने देखा है ऐसा। अभी रिक्शा वाला क्या करता है, इस भोपू को बजाता है, तो यहाँ से एयर क्या हो गई, बाहर आ गई, और फिर जब छोड़ता है तो ये क्या करता है, भोपू ओपन होता है, इन्फ्लेट होता है, ठीक है, तो ये चारों साइड में जाता है, बढ़ता है, उसकी वजह से एयर अंदर खींची चले आती है। तो डायफ्राम ऐसा फंक्शन करता है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन डायफ्राम की वजह से होता है। डायफ्राम क्या करता है, अंदर वाला जो पार्ट है उसको, अंदर का एयर का स्पेस बढ़ा देता है। हम आगे देखेंगे डायफ्राम का फंक्शन कैसे होता है, बट ये है नॉर्मल, इन शॉर्ट दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रकिया, राइट मेन प्राइमरी बॉन्कस, लेफ्ट प्राइमरी बॉन्कस, ठीक है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग और डायफ्राम, ठीक है। सो लेट अस गो अहेड। Okay, just read it. Can somebody read it for me, for all? Yes, who will read it? Sir, may I? Yes, please. Air passages, air tract. First, conducting part. Second, it transports atmospheric air into the alveoli. Third, it clears air from foreign particles. Fourth, it humidifies and brings the air to the body temperature. Yes, very good. So this is air tract जो है वो एक conducting part है, air को conduct कर रहा है, ठीक है, और कुछ absorption नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, if we see start from here, यहाँ से लेके तो यहाँ तक और यहाँ तक आगे तक नो एब्सॉर्प्शन, उसके बाद में अल्वियोला आता है, या टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में भी टर्शरी ब्रोंक्यूल पार्ट होता है, तो वो सब, लेकिन अल्वियोला में हम बोलेंगे मेनली क्या होता है, एयर का एब्सॉर्प्शन होता है। तो बाकी पार्ट क्या है, फिर सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट है, सिर्फ कंडक्ट करके दे रहा है, यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है बस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर एयर इनटू द अल्वियोलाई, ठीक है, फिर एयर को फॉरेन पार्टिकल्स उसमें निकाल देता है, ह्यूमिडिफाई करके बॉडी टेम्परेचर पे लाके रख देता है।
ओके, सो दिस इज द एयर पैसेज। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको ये लिखना है आपके नोटबुक में। ओके, फर्स्ट क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी जो बोलेंगे, आगे गया नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जहाँ नोज से ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे ये पार्ट है, ये पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स का वो पार्ट जहाँ पे नोज ओपन हो रहा है, जहाँ पे माउथ वाला ओपन हो रहा है उसको बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। जस्ट अ मिनट, इधर लिख देता हूँ मैं। ओरोफेरिंग्स, sorry for the bad handwriting, but I hope you are understanding. One is oropharynx, ओरोफेरिंग्स यानी ओरल कैविटी से ओपन हुआ, नेजोफेरिंग्स यानी जहां फेरिंग्स में नेजल कैविटी ओपन हो रही है, और लैरिंगोफेरिंग्स यानी जहां पे क्या है, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स है जिधर, उसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। तो ऐसे तीन पार्ट है फेरिंग्स के। ओके, यानी थ्रोट में ये तीन पार्ट पकड़े जाते हैं। तो नेजोफेरिंग्स हो गया, फिर उसके बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस और उसके बाद है लैरिंग्स। तो जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ग्लॉटिस होता है। मैं यहाँ पे उसको रेड कलर में बताता हूँ, ठीक है। ये सपोज ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, रेड कलर का जो है, दैट इज द, ये जो कैप है लैरिंग्स का, उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं लैरिंग्स का कैप को। जैसे कोई ढक्कन है कोई चीज का, वैसे तो लैरिंग ग्लॉटिस क्या करता है, वो कवर करता है काय को, लैरिंग्स को। जैसे कोई फूड फूड है सपोज, ठीक है, मैं पिछला स्लाइड बताता हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए क्लियर होगा आपको। यस, तो यहाँ पर लैरिंग्स के ऊपर ना, यहाँ पर ग्लॉटिस होता है। तो ये जस्ट इमेजिन लैरिंग्स टू बी समथिंग लाइक दिस, और इसके ऊपर क्या है, एक ग्लॉटिस है। सो ग्लॉटिस व्हाट इट डज, इट कवर्स द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स को कवर करता है जब रिक्वायर्ड नहीं है, जब फूड फूड पास करना है तो लैरिंग्स के ऊपर जो ग्लॉटिस है वो क्या करता है, क्लोज कर देता है उसको, ओपन नहीं रखता, नहीं तो फूड लैरिंग्स में चला जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए वो ग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। Just a minute, there is some problem. Okay, now it is clear now. So see, ये पैसेज है एयर का,
और ये एयर पैसेज कहाँ से, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, फिर नेजल चेम्बर, फिर नेजोफेरिंक्स, ग्लॉटिस जो कि लैरिंग्स का कवरिंग है, फिर लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स से आया ट्रकिया में, ट्रकिया से आया प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई भी होते हैं, यानी थोड़ा अंदर गया, प्राइमरी इनिशियल वाला पार्ट, फिर सेकेंडरी टर्शरी, ऐसे 3 हो गए। फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकस बोला है इसको, और उसके बाद में अंदर देखेंगे तो ब्रोंकियोल्स बोला है। Then respiratory bronchiole and alveolar duct, terminal bronchiole, then respiratory bronchiole and alveolar duct. तो alveolar duct है, वो duct के बाद में, जैसे alveolar duct में ड्रॉ करके आपको जैसे अगर बताऊंगा सपोज, ये alveolar duct है, कलर चेंज, हाँ alveolar duct है, और इसके बाद क्या है, ऐसे alveoli इसको कनेक्टेड। तो ये alveolar duct में भी रेस्पिरेशन होता है और alveoli में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दोनों जगह होता है, लेकिन हम लोग alveoli ही नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल इट alveoli only, बट alveolar duct में भी होता है रेस्पिरेशन। Each terminal bronchiole gives rise to many thin and vascularized alveoli. Now, I just want to know how many of you are from CBSE. Raise your hand. This topic we will keep it here as of now. So I will just revise what we have seen till now today. So we have seen breathing and exchange of gases. हमने start किया था. We have seen the two terms, that is respiration and breathing. Respiration is the oxidation of nutrients in the living cells to release energy for biological work, and breathing is the exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells. Then ये respiratory organs और examples देखिए, इसमें से बहुत सारे questions आते हैं एग्जाम में. This is very important chart, तो ये याद रखना है चार्ट को. Then we have thoroughly seen the human respiratory system. ऊपर से सारी चीजें, nostrils क्या है, ये oropharynx पार्ट, nasopharynx वाला पार्ट देखा है हमने, फिर एयर अंदर से यहाँ से आता है, फिर ट्रकिया वाला पार्ट है, लैरिंग्स वाला पार्ट है, ट्रकिया में सी शेप्ड रिंग्स है, ब्रोंकाई है, करीना ऑफ ट्रकिया हो गया, जहाँ से क्या होता है, ट्रकिया डिवाइड होता है 2 में, और फिर अंदर ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है, अल्वियोला में जाता है, यहाँ से एयर ह्यूमिडिफाई होती है, टेम्परेचर उसका मैनेज किया जाता है, और फिर हमने देखा ये पैसेज ऑफ द एयर, ये पैसेज ऑफ एयर कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है. तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें सारा अंदर कैसा है, देखिए बाहर से क्या है, ये सारा, ये क्या है, अल्वियोला है, ठीक है, लंग्स के जो अल्वियोला है, वो अल्वियोला की वजह से लंग इस हिसाब से दिखता है पूरा सारा, ठीक है, लंग्स. तो ये अंदर आप देखेंगे तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स इस प्रकार से अंदर दिखते हैं. ओके, so this is the lungs. So we will stop for today.